हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय आरएचपी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 15 टू 23 जनवरी, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना अप टू विच फाइनेंशियल ईयर। और इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल ईयर 2030 टू 31। क्या है अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है जिसके अंदर सब्सक्राइबर को मंथली पेंशन मिलता है 1000 टू 5000 तक आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन रेगुलेट करता है ये स्कीम? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, the Union Cabinet approved equity support of 5000 crore to which institution? Correct answer is SIDBI, Small Industries Development Bank of India. The Union Cabinet approved, chaired by Narendra Modi, approved 5000 crore support to Small Industries Development Bank of India. SIDBI के लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया है? 5000 करोड़। The equity will be infused by the Department of Financial Services in 3 tranches. First 3000 crore in financial year 25-26, second 1000 crore in financial year 26-27 and financial year 27-28. सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। Question 3, according to Moody's rating, what is India's projected GDP growth rate for financial year 25-26, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26। और इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 7.3%। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी रेटिंग projected that India's GDP growth will be 7.3% in financial year 26. Which state has opened its first dog sanctuary as a pilot project to humanly manage stray dogs? कौन से स्टेट ने ओपन किया है फर्स्ट डॉग सेंचुरी? पंजाब has opened its first dog sanctuary in Ludhiana. The sanctuary will operate in accordance with Supreme Court guidelines and animal birth control rules. Question 5, the India AI Impact Summit 26 will be held at which venue? कहाँ पे होने वाला है इंडिया AI Impact Summit? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी। It will be the first global AI summit in Global South hosted by India. The summit focuses on people, planet and progress, promoting responsible AI, governance, innovation and AI-driven development aligned with Viksit Bharat 2047. Next. Question 6. Which bank won the Best FinTech and DPI Adoption Award at the Indian Banks Association Banking Technology Award 26? इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको दिया गया है? ऑप्शन डी कर्नाटका बैंक। द अवार्ड रिकॉग्नाइज इट्स स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ फिनटेक सॉल्यूशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग एंड बैकएंड एफिशिएंसी। Next. Question 7, which Punjabi singer launched the mobile application Friendo to enhance women's safety in India? क्या नाम है पंजाबी सिंगर का? ऑप्शन डी काका। The app provides quick emergency assistance and digital safety tools for women and girls. एप्लीकेशन का नाम क्या है? फ्रेंडो। नेक्स्ट Question 8, who has officially announced her retirement from professional badminton in January 26? किसने रिटायरमेंट लिया है बैडमिंटन से? साइना नेहवाल। In 2015, Saina Nehwal became the world number 1 badminton player. Next. Question 9, according to the Numbeo Safety Index 26, which city was ranked as the safest city in India? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैंगलोरू। The Numbeo Safety Index 26 released in January 26
assess 304 cities worldwide based on public perception of safety and crime levels. मैंगलोर का रैंक कितना है 46 ग्लोबली और इंडिया में फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. The Center of Excellence for Regulatory Affairs in Power Sector was inaugurated at which institution to strengthen India's regulatory capacity amid rapid changes in the electric sector? कहाँ पे किया है? IIT दिल्ली. किसके द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. Which company secured nearly 300 crore contract under emergency procurement framework for supplying unmanned systems to the Indian Army and Indian Navy? और कंपनी का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड. भारत फोर्ज लिमिटेड एरोस्पेस डिवीजन सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ नियरली 300 करोड़ अंडर द इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट फ्रेमवर्क. नेक्स्ट Question 12. Which Indian origin astronaut announced retirement from NASA service effective 27 December, ending a 27-year career in human space exploration? और इसका आंसर है सुनीता विलियम्स. सुनीता विलियम्स announced her retirement from NASA service. In 2008, she was awarded Padma Bhushan, India's third highest civilian award, for her contribution to science and engineering. Next. Question 13. The Competition Commission of India approved Tata Steel Limited's acquisition of 50.01% equity in which company? और आंसर है त्रिवेणी पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड. The Competition Commission of India approved Tata Steel Limited acquisition of 50.01% in Triveni Pellets Private Limited. Question 14. The Competition Commission of India approved the proposed acquisition of 51 to 74% stake in RBL Bank Limited by which entity? Emirates NBD Bank. The acquisition involves 51 to 74% shareholding, leading to a change in control of RBL Bank. RBL Bank में 51 to 74% stake अप्रूव किया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने. Question 15. Reserve Bank of India approved the reappointment of which senior executive as a whole-time director of HDFC Bank for fresh 3-year term starting April 1926. किसका अपॉइंटमेंट हुआ है होल टाइम डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक? काइजेड भरूचा. ऑप्शन बी. Question 16. Which organization released the report titled Employment and Social Trends 26 World of Work Series? किसने रिपोर्ट ये रिलीज़ किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 26 वर्ल्ड ऑफ वर्क सीरीज. कहाँ पे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड. और इसके बारे में अभी न्यूज़ क्या है? द रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल रिमेन एट 4.9% इन 2026. कितना रहेगा रेट अनएम्प्लॉयमेंट? 4.9%. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. What is India's projected GDP growth rate for financial year 26 as per IMF World Economic Outlook? कितना है? 7.3%. International Monetary Fund released the World Economic Outlook titled Global Economy Steady Amid Divergent Forces. इसमें कितना GDP प्रेडिक्ट किया है? 7.3%. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 26 is observed on 23 January is also celebrated as पराक्रम दिवस. कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस. The day is celebrated as a पराक्रम दिवस meaning the day of courage. 23 January नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती also known as पराक्रम दिवस. Question 19. Which AI platform signed a
270 crore sponsorship agreement with the BCCI for the IPL starting from 2026 सीजन। किसके साथ स्पॉन्सरशिप हुआ है? गूगल जेमिनी। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI साइन 270 crore डील विथ गूगल जेमिनी फॉर IPL। कब से इफेक्टिव होने वाला है? 2026। Question 20. Which country unveiled its most advanced ballistic missile submarine, the Type 096 tank class, marking a major upgrade in its sea-based nuclear deterrence? कौन से कंट्री ने किया है लॉन्च? चाइना। और क्या नाम है मिसाइल का? टाइप 096 टैंक क्लास। दो चीज़ें याद रखिएगा, कंट्री का नाम चाइना और मिसाइल का नाम टाइप 096 टैंक क्लास। नेक्स्ट Question 21. The Indian space startup GalaxEye is set to launch its first privately developed satellite in early 26. What is the name of the satellite? और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि is a multi-sensory Earth observation satellite integrating optical imaging and radar sensing on a single platform. क्या नाम है मिशन का? मिशन दृष्टि। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? GalaxEye। नेक्स्ट क्वेश्चन 22. द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ हेल्ड इन January 26 वॉज चेयर्ड बाय होम? कौन है उसके चेयर? ओम बिरला। ऑप्शन सी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth from 14 to 16 January at संविधान सदन न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और it is organized by Parliament of India and chaired by Lok Sabha Speaker Om Birla. India hosted this conference for the fourth time. Next 23. The Responsible Nations Index was developed by World Intellectual Foundation in collaboration with which Indian university? Option B, Jawaharlal Nehru University JNU। और ये इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन न्यू दिल्ली। द इंडेक्स इवैल्यूएट्स कंट्रीज conduct towards citizens, the environment and the global intellectual community. क्या नाम है इंडेक्स का? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। किसके साथ लॉन्च किया है? कोलैबोरेशन हुआ है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन एंड JNU यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट which renowned music maestro has been selected for the Padma Pani Award to be conferred at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival in 2026? और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलायराजा। द अवार्ड विल बी कॉन्फर्ड एट द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और अवार्ड का नाम क्या है? पद्म पानी अवार्ड। नेक्स्ट who received the 104th Scotch Award 25 at the 104th Scotch Summit for developing the Cell Broadcast Solution? किसको मिला है अवार्ड? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। ऑप्शन सी। द अवार्ड वॉज given for its Cell Broadcast Solution, a national disaster and emergency alerting platform. Next question 26. Who was declared the winner of Uganda's 26th presidential election? और इसका आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योवेरी मुसेवेनी, युगांडा's president. Next question 27. According to Ministry of External Affairs, India's regular maritime engagement with BRICS nations takes place through which naval exercise? ब्रिक्स के साथ इंडिया का कौन सा नेवल एक्सरसाइज होता है रेगुलर? IB समर। क्या नाम है एक्सरसाइज का? IB समर। और अभी न्यूज़ में क्यों आया है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्लैरिफाइड दैट सो कॉल्ड ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज वॉज नॉट एन ऑफिशियल ब्रिक्स एक्टिविटी एंड वॉज अ साउथ अफ्रीका लीड इनिशिएटिव। जो ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज है ये ऑफिशियल ब्रिक्स एक्टिविटी नहीं है, ऐसा कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने।
नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिंग विच टू सिटीज़? ऑप्शन सी, हावड़ा, कोलकाता एंड गुवाहाटी। कौन से 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे? हावड़ा, कोलकाता एंड गुवाहाटी, कामाख्या। नेक्स्ट, विच रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफिसर has been conferred Indian Railway's highest award for her exceptional work in preventing child trafficking and rescuing vulnerable children? किसको दिया गया है अवार्ड? चांदना सिन्हा। She is known for child-centric ground-level approach focusing on identification, rescue and rehabilitation of vulnerable children at railway premises. Next, question 30. Who was approved as Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission by the President of India? किसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? प्रवीण वशिष्ठा। नेक्स्ट, ICICI Bank Limited has reappointed whom as its Managing Director and Chief Executive Officer for फर्दर 2-year टर्म? किसको अपॉइंटमेंट किया है ICICI बैंक ने एज MD एंड CEO? संदीप बख्शी। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन बाय द प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ऑन 15 जनवरी 2026? किसका अपॉइंटमेंट हो गया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन? शेख हुसैन मोहम्मद AI जिंदानी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the trilateral coast guard exercise दोस्ती 17 involves which of the following countries? और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। दोस्ती 17 ये जो ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है किस कंट्री के बीच में है? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अभी जो हुआ है वो कौन सा एडिशन हो गया है? 17th edition of the trilateral coast guard exercise दोस्ती 17 was held in, कहाँ पे हुआ है? मेल, मालदीव्स। नेक्स्ट, which US based company has partnered with BSNL to support the next phase of the India's Navy satellite communication upgrade program? किसके साथ पार्टनरशिप हो गया है BSNL का? VSAT। कंपनी का नाम क्या है? VSAT Inc. 35. What is India's rank in the ASEA Manufacturing Index 2026? कितना रैंक है इंडिया का? और इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 6th। इंडिया रैंक 6 अमॉन्ग 11 ASEAN countries in the ASEA Manufacturing Index. The ASEA Manufacturing Index is released by DesignSera Associated. और इस रैंक में फर्स्ट किसका रैंक है? चाइना रैंक फर्स्ट एंड मलेशिया रैंक सेकंड और इंडिया है 6th पोजीशन पे ASEA मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। क्वेश्चन 36. हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यन वार्ष्णे। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड 20 year old। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? आर्मेनिया। तो आपको यह 3 चीज़ें याद रखनी है। प्लेयर का नाम रखना है, कौन है? आर्यन वार्ष्णे, 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। कहाँ से बिलोंग करता है? दिल्ली। और ये जो टूर्नामेंट हुआ वो कहाँ पे हुआ? आर्मेनिया। नेक्स्ट, विच टीम वॉन इट्स फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र इन द फाइनल? अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हो गई वो बेंगलोर में हो गई और इसके विजेता कौन ठहरे हैं? विदर्भा टीम। Vidarbha won the first ever Vijay Hazare Trophy title by defeating Saurashtra by 38 runs. Next, from which date will Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme RBIOS 26 came into effect? कब से लागू होने वाला है RBI Integrated Ombudsman Scheme? 1 July 2026. Reserve Bank of India issued RBIOS 26 to strengthen and simplify customer grievance redressal in bank and financial institution. जो भी कस्टमर्स कंप्लेंट्स होते हैं वो तुरंत सॉल्व किए जाएंगे इस स्कीम के अंदर।
and it follows the one nation one ombudsman approach by integrating multiple legacy schemes into a single framework. कब से लागू होने वाला है? 1 जुलाई 2026. नेक्स्ट, Piramal Finance Limited secured $350 million in multilateral funding from which two development financial institutions. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड आसियान डेवलपमेंट बैंक. इनके साथ पार्टनरशिप हो गई है 350 मिलियन लोन के लिए. नेक्स्ट, फेयर वॉज द फर्स्ट एवर नमो बुक फेस्ट हेल्ड. कहाँ पे हुआ है नमो बुक फेस्ट? न्यू दिल्ली. इंडिया विटनेस अ न्यू लिटरेरी इनिशिएटिव विथ लॉन्च ऑफ फर्स्ट एवर नमो बुक फेस्ट इन न्यू दिल्ली. और किसने किया है आयोजित? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिलीजेस 2 बुक्स JNV बानो एंड महात्मा एट इनॉग्रल इवेंट. ये जो नमो बुक फेस्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, इसमें यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने 2 बुक रिलीज़ किए हैं. क्या नाम है बुक के? JNV बानो एंड महात्मा. नेक्स्ट, द काजीरंगा एलिवेटेड कोराइडर हुज फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग ऑन विच नेशनल हाईवे. कौन से नेशनल हाईवे पे ये बिल्ड किया गया है? नेशनल हाईवे 715. Kaziranga Elevated Corridor is a 34.5 km long elevated road being built along National Highway 715 in Assam. The Spittuguster Festival belongs to which state / Union Territory of India? कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख. India and Israel signed a joint ministerial declaration of intent to deepen cooperation in which sector? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर के अंदर जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है इंडिया एंड इजराइल का. The signing took place on the sidelines of second Global Summit on Blue Food Security, See the Future 2026, which is held in Israel. Which country hosted 6th ASEAN India Digital Ministers Meeting? और कंट्री का नाम है वियतनाम. The meeting was held under the theme Adaptive ASEAN from Connectivity to Connected Intelligence. 6th ASEAN India Digital Ministers Meeting कहाँ पे हुई है? वियतनाम. With the theme Adaptive ASEAN from Connectivity to Connected Intelligence. Next, who has been appointed as a whole-time director on the board of Kotak Mahindra Bank subject to RBI's approval for 3-year term? किसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ होल टाइम डायरेक्टर कोटक महिंद्रा बैंक? अनूप कुमार साहा. करेक्ट ऑप्शन बी. India signed a joint declaration of intent on telecommunications cooperation with which country in January 2026? किस कंट्री के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है? जर्मनी. करेक्ट ऑप्शन बी. Which institute developed the integrated road safety dashboard to strengthen road safety governance in India? कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी डैशबोर्ड? IIT मद्रास. नेक्स्ट, which foreign bank has received RBI's approval to set up a wholly owned subsidiary in India? कौन से फॉरेन बैंक को अप्रूवल मिला है RBI की तरफ से? सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन. एक जापान की बैंक है और इनको अप्रूवल मिला है एज अ होली ओन सब्सिडरी. क्या होता है होली ओन सब्सिडरी? अलाउज अ फॉरेन बैंक टू ऑपरेट लाइक अ डोमेस्टिक बैंक including opening branches freely without RBI approval. Next, where is the world's largest green ammonia project being developed in India with an investment of $10 billion? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? काकिंडा, आंध्र प्रदेश. और किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाए है? AM ग्रीन. तो आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना है, याद रखना है लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट डेवलप
in Kakinda, Andhra Pradesh by A.M. Green. National Startup Day is observed in India on which date? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16 जनवरी. नरेंद्र मोदी marked 10 years of Startup India movement on National Startup Day. National Startup India movement was launched on 16 January 2020. 16 January 2016. Next, where will be the Bharat Electricity Summit 26 held? कहाँ पे हुआ है भारत इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ पे होने वाला है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 26? यशोभूमि, न्यू दिल्ली. कब होने वाला है? 19 to 22 मार्च. और इसके लिए एक थीम रखा गया है. क्या थीम है? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली. और ये किसने अनाउंस किया है? अनाउंस बाय यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल. Where will the 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? कहाँ पे होने वाला है 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस? कोची, केरला. कब से शुरू होने वाला है? 23-26 फरवरी. और इसके लिए भी एक थीम रखा गया है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी. तो आपको क्या याद रखना है? 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाला है? कोची, केरला. और इसके लिए थीम क्या है? स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी. नेक्स्ट, हु ऑन द ICICI मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर December 25 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एसेस सीरीज? किसको दिया गया है अवार्ड मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर December 25? मिशेल स्टार्क. बिलोंग कहाँ से करते हैं वो? ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडिया GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 26 इज प्रोजेक्टेड एट? कितना प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP? 7.2%. Next, who has been appointed as the chairperson of the 15-member high-level expert committee constituted by PFRDA to formulate a regulatory framework for assured payouts under the NPS? NPS payout के लिए एक कमेटी डेवलप की है 15 मेंबर की. किसके द्वारा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा. और इसके चेयर कौन है? MS साहू. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट शेयर ऑफ पर्सनल 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडोप्शन इन 2025 अमॉन्ग टॉप EV सेलिंग स्टेट्स? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर कौन से स्टेट में सेल हुए हैं? केरला. What is the theme of India's BRIC Chairship 26 unveiled by Union Minister Dr. सुब्रमण्यम जयशंकर? क्या थीम रखा गया है ब्रिक्स चेयरशिप के लिए? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. इस साल इंडिया होल्ड कर रहा है ब्रिक्स की चेयरशिप 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक. नेक्स्ट, who won the Taylor Prize for Environmental Achievement for groundbreaking research on underground mycorrhizal fungal networks? किसको दिया गया है अवार्ड टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट? टॉबी कियर्स, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट. नेक्स्ट, who has been appointed as the Director General of the National Investigation Agency until 31st August 2028? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG के तौर पे किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? राकेश अग्रवाल. Which state secured first rank among large states in the Export Preparedness Index 24 released by नीति आयोग? तो किसका फर्स्ट रैंक आया है? महाराष्ट्र. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने रिलीज किया है? नीति आयोग. और उस सेकेंड पे कौन है? तमिलनाडु एंड थर्ड गुजरात. महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट, तमिलनाडु सेकेंड एंड गुजरात थर्ड. किसने प्रिपेयर किया है इंडेक्स? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग. नेक्स्ट,
Which regional rural bank became the first in India to launch the country's first fully solar powered mobile ATM van TGB on wheels? और इसका आंसर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक became the first RRB in India to launch a fully solar power mobile ATM van जिसको नाम दिया गया है TGB on wheels, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। Which state launched the Akka Pade scheme to prevent child marriage and protect minor girls and women? कौन से स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है? अक्का पड़े स्कीम। स्टेट का नाम है कर्नाटका। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26? कितना है इंडिया का रैंक? करेक्ट ऑप्शन सी 18th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का रैंक है 18th। और टॉप किस पे टॉप कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 जनवरी। इंडियन आर्मी डे 26 was observed on 15 January, marking the 75th anniversary of the day। तो एस्पिरेंट ये थे वीकली करंट अफेयर्स। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिए। साथ ही कमेंट में हमें ये बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।